So देखो, now I am sharing my screen. I just wanted to show this thing on Figma, but somehow that login was not working that time. So I showed you on PPT. If you are not comfortable with Figma, then do it in the PPT style, the way we discussed in the previous session. Right, so now you guys are able to see my screen on Figma, right? तो देखो, स्लाइड्स लेआउटिंग कैसे करना है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. बिकॉज पोर्टफोलियो के लिए ये चीज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. इफ यू डोंट डेमोन्स्ट्रेट योर वर्क प्रॉपरली, देन the chances are that they will also forget to look deeper into it, and if they forget to look deeper into it, then it's like effort wasted, right? So just quickly explain how this thing works, right? So right now I am trying to show you three four different styles of लेआउटिंग. इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. Sir, Yes. I have a question. So remember you told us about that T-shaped Yes. portfolio. Yes. Yeah, so the thing is that since I have had like proper detailed projects before this also, so I want to include them as well. But I have many projects that are detailed. Okay. So what do I do? Should I like stick to one best, which I think, or maybe I can keep maybe two? You can keep two. So the whole idea is at master's level, of course, you will have experience and some other projects and freelance work and all. So give them glimpse of different types of projects. That's why what I am coming to. So देखो क्या करना है तुम्हें कि बहुत सारे different type of slides explore करने. So ये लेआउट हो गया, एक ऐसा लेआउट हो गया, एक ऐसा लेआउट हो गया, कि एक फुल व्यू का लेआउट हो गया. अब डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव and what kind of work fits what kind of layout. So for example, if I am into fashion illustrations, मुझे इस टाइप का layout अच्छा लगेगा because most of my figures are like in a portrait fashion, right? तो यहाँ पर मुझे कोई टाइप की फिगर रहेगी, उससे रिलेटेड बहुत सारे गारमेंट एक्सप्लोरेशंस रहेंगे, या फिर मेरा बहुत सारा क्राफ्ट या उसका काम है. Let's say I am into a lot of paper based origami exploration. So this type of layout where I can say 6 to 7 options in one go, right? Yes, sir. So this kind of layouting would work. If I'm into product design, then maybe this kind of layout where I have info about the product, what was the problem statement, how I solved it, some images, and then one big image which is like the final product. If I am into photography design, then photography will have like these are like my full blown pictures and just a brief info about the picture. अब ये info आप यहाँ भी रख सकते हो या यहाँ पे नीचे रख सकते हो. Like what was the project का title and the theme of the photographs and all that. So like this you have to explore, and इसका combination भी आप कर सकते हो. But if you see, this is like the all of them. So if you see, I have put it this whole 5 slides का layout in grayscale mode. But इसका मतलब ये नहीं कि gray रखना है. Just that you can keep the styling consistent, and I'm just putting the position of elements. Like the placeholders. Placeholders, exactly. These are placeholders. तो अभी ये जो लेफ्ट साइड का बार है ना, जैसे तो ये बार आप किसी एक सर्टेन स्टाइल में कलर कर सकते हो या कलर कोड कर सकते हो उसको. तो कलर कोड से क्या होगा कि फॉर ईच कैटेगरी यू विल हैव दिस वन सेपरेट कलर कोड.
या फिर it can be like a consistent color code for all your styling work. तो अभी देखो जैसे ही मैंने इसको सबको रेड किया, they all starts looking like one part of a project. They all of them are like red now. समझ रहे हो? And then this bottom thing becomes your page numberings, these bottom circles. So these circles are just like for the sake of numbering and for the sake of giving a hint that okay, you are at this page. So abhi you can see like there is a very strong correlation between this red and this red bar, red dot and this red bar. समझ रहे हो? In this particular view. So all these slides and this red dot. तो क्या होगा कि एक बार और ये आपका red dot, it will denote कि you are at slide so and so. So आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसके ऊपर numbering 1 to 15 and these slides, let's say these two are for my product design. So for product design, I keep the color as green. So these two slides are green. Then the rest two slides are red. Then the last, again some third title, I have slide with, let's say I have fashion illustration, so I keep this like slightly purple. So this is how you kind of create a layout, proper layout, and it looks neat, clean, and visually very appealing. That these two purple slides belong to fashion illustration. These two green slides belong to product design work. These red slides belong to sketches and illustrations. So like that, right? And then based on the kind of work, you can define the layout for that particular page. But it should look somehow consistent also. So अगर आप ये styling consistent रखते हो with this red bar and these red dots, then it kind of gives a cohesive effect. ऐसा लगता है कि आपने एक proper सोचा समझा layout बनाया है, right? So this thing is very important. Yeah. So I have another doubt. So it's about the studio test thing. So it's like I'm not very confident about the studio test part of it. So I am putting more amount of time into, like crafting or cutting and all these exercises. So the thing is but now still it's like unsure whether there will be a studio test or not. Right. So how should I like divide my time right now? Like should I like do it 50-50 or how I go about it? See, I would suggest studio test is highly less likely. Like it's very less likely that studio test will happen, that they will invite you all and ask for a live demonstration. But nonetheless, if they give you some work online and as an one-to-one studio, I think you guys have done enough craft work in the last 6-7 months, so that won't be a challenge. I think it would be more of a activity-based questionnaire or portfolio round. I think portfolio round this time would be more intense. So you should focus on those activities which they have given you, like find a picture of your favorite movie and describe that. Those kind of illustrative work, which they are asking you like discipline wise, right? It's like the task based. Right, task based thing. Yeah. So IITs are also doing. Exactly. So if you focus on those task based activities, then it would be much more interesting. They may give you some last moment thing, but I think that last moment thing in graphic design as such won't be very complicated stuff. So most of the time they would either ask you some GK based questions or your opinions about X and YZ graphic design work, or they may ask you to draw certain elements or figures or logo design options in an instant. 15-20 minutes में आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब लिमिटेड रहता है. तो टास्क बेस्ड एक्टिविटीज पे फोकस रखेंगे तो बेटर है. यस ईशान. Okay. Sir, the other day I watched like a video. It was about a person, like I don't know, probably he was a undergraduate. Last year he got admission into the NID Institute. So he was telling like about how to build the portfolio. He told that he just included one sort of thing, like his interest was in comics and games, he mentioned. So he just included those things like comics and games and some of his good sketching work. And at the end he just added the product like he had made some years ago. So should I
go for particular project. Like I can express my creativity through comics and doodles. Right. So should I just keep comics and doodles in the portfolio and remove all the other stuff, or नहीं should I नहीं make a varied one? See, variety. See, why variety is important is because you may feel you are excited about illustrations or comic work, but the faculty thinks that your comic work is not up to the mark, or there are other 15 candidates whose comics work is much more better than you. So in that case, have a uh, you have lesser chances of getting selected. Versus if you show diverse variety of work, the faculty will have more chances to make your selection, or more chances to select you, or more chances to qualify you for the next round. आप समझ रहे बात? तो लेट्स से यू वेंट टू गारमेंट स्टोर और टॉय स्टोर, अब आपको जिस टाइप का टॉय चाहिए वो वहां पे नहीं है, बट इफ दे हैव अदर वेराइटी एंड यू मे फाइंड सम अदर वेराइटी इंटरेस्टिंग, दैट हो सकता है आप वो वाला टॉय भी खरीद लो या वो टाइप का गारमेंट ट्राई कर लो. सो वेराइटी, शोइंग वेराइटी इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट शुड बी हाईलाइटेड फर्स्ट, बट अगर आप वेराइटी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दोगे तो दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी. सी कई बार क्या होता है कि दे टेक अ डिसीजन इन स्प्लिट सेकंड. सो द स्प्लिट सेकंड डिसीजंस इज लाइक दिस गाय इज वेरी गुड एट इट एंड दीज आर द subsequent weak points, or let's say not so good areas. So अब अगर आपका not so good areas को आप वैरायटी से बैलेंस कर दो तो वो आपके फेवर में हो जाता है डिसीजन. जैसे अगर किसी स्टूडेंट को फोटोग्राफी भी अच्छा आता है, उसका क्राफ्ट वर्क भी अच्छा है, उसका प्रोडक्ट डिजाइन सेंस भी बहुत अच्छा है, उसकी स्केचिंग भी रिलेटिवली बहुत अच्छी है, और उसका कलर सेंस भी बहुत अच्छा है, उसको जनरल अवेयरनेस भी बहुत अच्छा है, उसका आइडिएशन और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग काफी सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका बहुत अच्छा है, एनालिटिकल स्किल्स उसका काफी अच्छा है, तो आई हैव वेरी लेस चांस ऑफ रिजेक्टिंग दैट कैंडिडेट, राइट. वर्सेस अगर आप केवल स्केचिंग दिखाओगे पोर्टफोलियो में तो मुझे क्या पता पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसा है. स्केचिंग कैन गिव यू जस्ट वन आइडिया अबाउट योर वन स्किल, करेक्ट. सो डोंट जस्ट फोकस ऑन वन स्किल, show all the variety. You will have more chances of impressing the judges. Oh, yes, sir. And another doubt that I had like is if I want to show my material handling skill, like all the different 7-8 types of materials that I have handled till now. But the problem is that I can't excel in all of them in such a short span of time. Yeah. Like if I try some metal work, I can't make a good metal product or something at the first day. It will take a lot of years to make that. So Yes. the first or the second or third attempts won't come that good. So is it okay if I put that third or fourth attempts which are not that good in the portfolio? You can. Making them perfect will take a lot of time. You can. देखो इस टाइप का लेआउट बनाओ जिसमें you show a lot of variety and you show small pictures of all the options, all the variety, all the category. Like you have done almost 10-15 different types of soap carving, clay work, metal work, paper craft, right? So all that things you can put in small pictures and make it like a collage, and share that these are all the materials that I have explored so far. So that also creates a very good impression, because see, you are at a student level, they don't expect you to be perfect, they just expect you to be explorative and inquisitive and hardworking. तो वो पर्सनालिटी दिखाना या वो लर्नर एबिलिटी दिखाना, दैट लर्नर्स माइंडसेट शुड बी शोन, that I am willing to explore, I am willing to learn, I am willing to try 20 different things. Because at such an early age, you cannot 100% be sure कि आपको यही काम करना, or you are only good at this work. We keep evolving. So variety is always good. And when you don't have like a very like polished product or one final masterpiece, then impress them with variety. Variety of explorations is also a very important aspect of design. ठीक है? Yes. Any other question? So देखो इस टाइप आप लेआउट बना सकते हो. Sir, my strong points are like comics, storytelling, and doodling. So I can keep one or two projects of them in the portfolio. Is that okay? हाँ, definitely.
सी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड में हाईलाइट होना चाहिए. इट इज द हायरार्की विच मैटर्स. तो आपको किसी को इंप्रेस करना है तो आप फर्स्ट 3-4 सेकंड्स में इंप्रेस कर दो. शो योर बेस्ट वर्क. एंड बेस्ट वर्क से क्या डेफिनेशन है? जिस वर्क के बारे में आप बहुत पैशनेटली फील करते हो, जिस वर्क से आप बहुत ज्यादा डिटेल्स या बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हो, एंड देन जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा बात कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरव्यू उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा. So if your photography is not your strongest point, then don't put photography as a first slide. Right? If sketching is not your strong point, then don't put sketching in the first 2-3 slides. जो आपका strong point है, because क्या होता है कि जैसे the faculty sees 50-60 portfolios in a given day, so they have to quickly identify which potential candidate should be selected for the next round. Right, or which potential candidate is like good enough for the interview. So the minute this open 5-6 slides, first 5-6 slides are like your defining moments. So वो सबसे ज्यादा impressive काम होना चाहिए, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा confidence है. Then they will ask you questions related to that. That why you chose this product, why you designed this kind of poster, what is your idea about this particular style and all that, why you use these particular colors, why this particular font, या फिर why this material, why that material, what all did you thought about breaking that particular bottle, why only paper based packaging, why not bubble wrap, or why not styrofoam or thermocol or something like that. So they will ask you questions like this. So if you have really worked hard on that particular problem or product or idea, you will be able to talk about it. First 15 minutes is enough for the judges to finalize. 15 मिनट के क्वेश्चन आंसर में पता चल जाता है कि स्टूडेंट कितना हार्डवर्किंग है, कितना सिंसियर है. And sir, if suppose they took the interview, like live interview at their campus or some center, then sometimes what happens, like the models that I make, they become too heavy and bulky to carry. So can I show them the photos of this model? हाँ, photos and videos are the best way to showcase your work. So that's why I told you that time also when you were doing the drop test कि उसका वीडियो बना लो. So अब वो वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा, तो उसको लगा दो पोर्टफोलियो में भी, उसको वीडियो एम्बेड कर दो पीपीटी में, या फिर ये क्लिकेबल इंटरेक्टिव पीडीएफ बना के, या फिर उसको एज अ सेपरेट मोबाइल डिवाइस और आईपैड यू कैन कैरी एंड शो इट देयर. And if you can carry the actual product or prototype, well and good, like that's the best thing to do. But still, as a safety measure, you should carry a proper video of that product. Even if it's like a art piece, you should rotate your product and take it from a 360-degree view. ऐसा rotate करके in a very slow fashion, so they will get an idea that okay आपने किस size का product बनाया है, कैसा material, उसका texture कैसा है, उसका overall look and feel कैसा है. That's why I highlight a lot on doing photography daily. कई बार क्या होता है कि आपका काम तो बहुत अच्छा है, बट वो फोटोग्राफ्स इतने गंदे हैं या इट्स नॉट अप टू द मार्क, सो इट्स नॉट डूइंग जस्टिस टू द एक्चुअल वर्क. इवन आपके स्केचेस के पिक्चर्स भी उस पर शेडो आ जाती है या उस पर गलत टाइप की लाइट रहती है, तो द लाइन क्वालिटी इज नॉट क्लियरली विजिबल. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. अपने काम को अच्छे से प्रेजेंट करना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. तो इसलिए इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लेआउटिंग पे बहुत ध्यान रखो. और दूसरी चीज ये देखो, मैंने हर जगह इन्फो लिखा हुआ है ना, मोर इन्फो लिखना बहुत जरूरी है. डोंट जस्ट अज्यूम कि वो इमेज से समझ में आ जाएगा. सो व्हाट यू राइट इन द पोर्टफोलियो इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. दे विल जस्ट क्विकली रीड इट एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस. मे बी द फर्स्ट 2 questions will be based on what you have written. It should be very very simple for them to understand. समझे बात? जितना वो इजी बनाओगे आप किसी चीज को समझने के लिए, उतना इट विल बी कंफर्टेबल फॉर देम टू आस्क यू क्वेश्चंस, एंड दे आर देयर टू सिलेक्ट यू, नॉट रिजेक्ट यू. रिजेक्शन तभी होता है जब आपके पोर्टफोलियो में क्लैरिटी नहीं है या आपके पोर्टफोलियो में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है. लाइक आपने बनाया कुछ और है, टाइटल कुछ और डाला है, राइटिंग मिस्टेक्स हैं, या ढंग से आपने उसको डिस्क्राइब नहीं किया है कि क्या बना हुआ है, राइट? उस टाइप से प्रॉब्लम्स होती हैं. तब फैकल्टी को लगता है कि यार ये बंदा क्लियर नहीं है, इसको क्या करना है, या इसके आइडियाज ढंग से इसने डिफाइन नहीं किए हैं,
in that case it goes to for rejection. But otherwise, trust me, they want to select you. All they want to see is your dedication, hard work, passion, and that eye for detail. अगर आपको डिटेलिंग और उसकी समझ है तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, दे जस्ट वांट टू सिलेक्ट यू. समझ रहे हो? अब जैसे इस टाइप का प्रोटोटाइप है ना, ये सीमेंट में एक्सप्लोर किया, थर्मोकोल में एक्सप्लोर किया, इसके छोटे छोटे पिक्चर्स लेके ऐसा पूरा एक कोलाज बना लो, 7-8 पिक्चर्स का, 8 का बना लो, 12 का बना लो. और ये टाइप के प्रोडक्ट्स तो आप कैरी भी कर सकते हो, छोटे वाले, लाइक दी स्टोन पेंटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. बट यू हैव टू राइट ऑल्सो, लाइक व्हाट वाज द थीम अबाउट. अब जैसे ये एक पिक्चर है ना, तो ये एक पिक्चर इज नॉट डूइंग जस्टिस टू द प्रोडक्ट. The product may look even more beautiful from other angles. So you should make a small video. A 30-second video, 40-second video is enough. ठीक है, बस इतना सा है. अब जैसे ये है ना डिजिटल आर्टवर्क, ये इस टाइप का कंपोजिशन बनाओ कि 4-5 आपने जो भी स्टाइल ट्राई किया था वो 4-5 आपने एक जगह रख दिया. एंड now they will ask questions regarding what is this project, what is that project. Now इसमें बस प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. हाउ बिग इज दैट पोस्टर and which is a poster, which is the visiting card, that I don't know. So you should write a bare minimum detail, like this is a poster size for digital screens, or poster for backlit display, or a poster for paper printing, or this is a what do you call invitation card, or this is a visiting card, or what exactly it is, वो लिखना बहुत जरूरी है. जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना कि these are creative explorations of compositions. अब यहाँ पे वर्ड होना चाहिए composition via matchstick. So जब आप लिखोगे compositions via matchstick, it would be very clear that what do you mean by confused mind, what do you mean by directionlessness, and what kind of project you are trying to showcase. So is it just for photography's sake, it is for composition, is it something like illustration, or what exactly it is. तो वो उसके लिए थोड़ा मिनिमम डिटेल आपको रखना बहुत जरूरी है. डोंट जस्ट शो पिक्चर्स. अब जैसे ये वाटर कलर्स है, तो वाटर कलर्स में व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिपिक्ट, उसका जस्ट 2 लाइन्स का डिस्क्रिप्शन, लाइक पीपल वॉकिंग बाय अ लेक और समथिंग लाइक दैट. समझ रहे हो? That basic description is important. जैसे ये आपने बोला I made lamps using waste material like plastic waste. So these kind of small titles are important. और फिर कंपोजिशन की तो हमने अभी बात कर ही ली डिटेल में. ठीक है, बस दैट्स इट. इससे आपका काम हो जाएगा. और ये फिग्मा वाला जो टूल है, जो मैं आपको बहुत पहले भी बोला हूँ, ये वाला आप जरूर ट्राई करो. इसका थोड़ा लर्निंग कर्व इनिशियली रहेगा 2-3 दिन, बट इसमें बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से बन जाती हैं. इट विल बी रियली फास्ट लेटर ऑन. समझ रहे हो? Yes, sir. We'll try on that. जैसे अभी ये देखो, जैसे अगर मेरे पास ये इमेज है ना, तो ये इमेज मैंने लिया और ये इसमें ड्रैग ड्रॉप कर दिया. तो यहाँ से अगर ये इमेज मुझे एज इट इज यहाँ पे लगानी है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू ड्रैग ड्रॉप दिस इमेज. अब मैंने अपने पोर्टफोलियो का कंपोजिशन ऐसे बना लिया, और बनाने के बाद फाइनली आई पुट इट हियर. तो फिर उसके बाद जस्ट मुझे इसको एडजस्ट करना है साइज वाइज. सो इट बिकम्स रियली इजी लेटर ऑन. ऐसे करके मैंने लगा दिया. और अब इसके बाद मुझे इसको क्रॉपिंग करना है, तो क्रॉपिंग मैंने यहाँ से कर दिया.
राइट। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरा ये मेन प्रोडक्ट का इमेज आ गया, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लिख दूंगा एंड माय स्लाइड इज डन। इसमें इसका एक पूरा जो ओवरव्यू है ना, उसका एक और इमेज यहाँ पे डाल दूंगा, विच इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यहाँ पे डाल दूंगा। राइट, तो ये वाला स्लाइड मैंने यहाँ डाल दिया और फिर उसके बाद के जो बाकी के ऑप्शंस हैं, मतलब हाउ टू प्ले एंड ऑल, ये मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। So that's how it will work here. Or you can use 2 slides to define this particular big project. समझ रहे हो इस टाइप से। सो अगर मैं एज अ फैकल्टी इस चीज को देखता हूँ तो इट विल बी वेरी क्लियर फॉर मी टू जज द प्रोजेक्ट, दैट व्हाट द प्रोजेक्ट इज अबाउट एंड हाउ यू हैव थॉट अबाउट द प्रोजेक्ट एंड ऑल। सो अब मैं जब आपसे इंटरव्यू करूंगा तो इंटरव्यू में मैं आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन ही पूछूंगा, जो आपने लिखा हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे। And because you have worked on the project, you will be very easily able to answer these questions. ठीक है, so it's that simple. इसमें बस 2 चीजें ध्यान रखने वाली ये है कि आपको सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंसी रखनी सारी स्लाइड्स में, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके डिस्क्राइब करना है। स्ट्रक्चर मीन्स मेरी कैटेगरी ऑफ क्रिएटिव स्टाइल्स, जैसे लोगो डिजाइन हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गया, प्रोटोटाइपिंग हो गया, उसकी कैटेगरीज बना लो और उसके बाद उस कैटेगरी का एक विजुअल थीम या विजुअल स्टाइलिंग डिफाइन कर लो कि मुझे ये स्टाइल दिखाना है, इस स्टाइल से प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना है, बस। बाकी सारी चीजें रिलेटिवली बहुत, जैसे हमने इसमें डिस्क्राइब किया ना, देखो इस टाइप से एक स्लाइड बना लो, उसी स्लाइड की कैटेगरीज को फॉलो करो। थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कॉलम लेआउट कर लिया, यहाँ पे 3 कॉलम लेआउट कर लिया, राइट। बट उसके बीच की जो जो पैडिंग और स्पेसिंग है, जो जहाँ पे मेरे टाइटल्स जा रहे हैं, जहाँ पे मेरा पेज नंबरिंग का सेक्शन है, वो चीजें बहुत क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, उसमें कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे कई बार स्टूडेंट्स क्या है, इस टाइप की मिस्टेक करते हैं, देखो ऐसा कुछ अजीब सा फोटोशॉप में ब्लर इफेक्ट या शैडो इफेक्ट लगा दिए, देख रहे हो आप। अभी मेहनत तो किया है बट उसका प्रेजेंटेशन बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इट्स लाइक आई एम नॉट एबल टू क्लियरली सी कि कहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है और वो किससे रिलेटेड है। अब ये वाइल यूजिंग द मसाजर, ये इससे रिलेटेड है, इस चेयर से रिलेटेड है, या ये टाइटल कौन से इमेज को कनेक्ट करता है, राइट। तो इस टाइप का विजुअल लेआउटिंग नहीं होना चाहिए, दिस लुक्स विजुअली वेरी शैबी। अभी जैसे इस टाइप के पिक्चर्स हैं, तो ये जो फोटोशॉप में एयर ब्रश इरेजर यूज करके ऐसा जैगर्ड एज जो आ रहा है ना, ये इफेक्ट ठीक नहीं है। आपका काम अच्छा है बट उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत वीक लग रहा है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? समझा Yes, ना? sir. ये वाली स्क्रीन दिख रही है ना आपको, एयर ड्राई क्ले मॉडलिंग एंड मॉडल फॉर फ्रॉम कार्डबोर्ड, थ्रेडवुड, स्टायरोफोम, माइक्रो ज्वेलरी बॉक्स फ्रॉम सोप। तो अपने आप में काम तो अच्छा है बट वो जो प्रेजेंटेशन है वो देख के मुझे कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। सो इट शुड लुक्स एक्साइटिंग, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगना चाहिए। So, sir, the faculty should understand what the product is about by just reading 1 or 2 lines, and हाँ, exactly. because they don't have the time to sort of go into detail of all the portfolio. और क्या सी, आप जिस किसी सुपर स्टोर में जाते हो, आप बिग बाजार में गए या आप वेस्ट साइड में गए या आप किसी बड़े से मॉल में गए, सो यू रीड दोज लेबल्स ना, किस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है। मेन सेक्शन, विमेन सेक्शन, किड्स सेक्शन होता है ना। सो इफ दे डोंट पुट दोज लेबल्स एंड दे कीप एवरीथिंग ऑन एवरी फ्लोर, तो आप कितना कंफ्यूजिंग फील करोगे ना। एकदम से 11 नंबर का जूता है और उसके जस्ट साइड में 3 नंबर की सैंडल भी रखी हुई है छोटे बच्चों वाली, फिर उसके बाजू में एक टॉय भी रख दिया, फिर उसके बाजू में बुक सेक्शन रख दिया, तो इट विल बी टू मच ऑफ जम्बल्डनेस, राइट, टू मच ऑफ कंफ्यूजन। कौन से कैटेगरी में क्या रखा हुआ है, आपको पूरा मॉल एक एक इंच ध्यान से देखना पड़ेगा। सो नोबडी वांट्स दैट अननेसेसरी हार्डवर्क।
सो कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डिस्प्ले को आपने कितना सुंदर रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पूरा डिस्प्ले या उस पूरे प्रेजेंटेशन में आप यूजर को कितना इजीली कोई चीज कम्युनिकेट करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जब हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वी पुट नंबर्स फॉर ईच स्लाइड। सो फर्स्ट, इसलिए सारी बुक्स जो होती है ना अक्रॉस द ग्लोब, बुक्स ऑलवेज हैव अ कंटेंट सेक्शन कि कौन से पेज पे आपको क्या टॉपिक मिलेगा, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी फॉर पीपल टू फाइंड। सो पेज नंबर होना चाहिए, टाइटल्स प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए, आपका हर टाइप का काम एक कैटेगरी के अंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फर्स्ट स्लाइड पे स्केचेस डाल दिए, फिर लास्ट स्लाइड पे स्केचेस डाल दिए, फिर बीच में प्रोडक्ट का एक फोटो डाल दिया, फिर कोई रंगोली का फोटो डाल दिया बीच में, ऐसे जम्बल्ड अप नहीं। क्लियरली डिफाइन करो कि ये सेक्शन है, इस सेक्शन में ये काम। जैसे ये सारी स्लाइड्स का एक टाइटल होना चाहिए 3D मॉडल मेकिंग। अब 3D मॉडल मेकिंग में आपने किस किस टाइप का प्रोडक्ट बनाया, ये ऐसा जो 5 प्रोडक्ट्स हैं उसको आप रो वाइज भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, सिंपल। बहुत ऐसे क्रेजी कॉम्बिनेशन या क्रेजी लेआउटिंग ट्राई करने का जरूरत नहीं है, इट शुड बी कंसिस्टेंट। जैसे यहाँ पे हमने बनाया ना, इमेज डाला, इमेज के नीचे इन्फो डाल दिया, फिर इमेज डाला, इन्फो डाल दिया, फिर इमेज डाला, इन्फो डाल दिया। ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि इमेज कहाँ जा रही है, इन्फो कहाँ जा रही है, फिर इमेज कहीं और जा रही है, इन्फो कहीं और जा रही है, फिर बीच में एक पिक्चर का पेंटिंग का फोटो आ गया, फिर बीच में लैपटॉप का 3D मॉडल आ गया, फिर ये सोप का साइज आ गया। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि सोप का साइज और लैपटॉप का साइज सेम दिख रहा है, विच कैन नॉट बी देयर, आई मीन विच इन रियल वर्ल्ड डजंट हैपन दैट वे। सो आप जब भी कोई हैंड होल्ड ऑब्जेक्ट, हैंड होल्ड साइज का ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो उसमें एक हैंड का फोटोग्राफ जरूर होना चाहिए। अब ये कप कितना बड़ा है ये तब इजीली समझ में आता है जब मेरा हैंड भी उसके साथ हो, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो जब आप प्रेजेंट करते हो अपना आइडिया, उसके प्रेजेंटेशन के साथ साथ वो चीजें हमेशा होनी चाहिए। कोई भी आप हैंड हेल्ड ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हो तो उसमें एक स्केच हैंड होल्डिंग वाला भी होना चाहिए। अब जैसे ये ज्वेलरी बॉक्स है तो इसके अंदर ज्वेलरी दिखाना जरूरी है, कोई ज्वेलरी तो दिखाओ उसके अंदर। जैसे मुझे क्या पता पड़ेगा कैसे ज्वेलरी बॉक्स, कितना साइज है, कितना बड़ा है। तो अगर इसके अंदर ज्वेलरी रखी होती तो ये और भी अच्छा लगता, समझ रहे हो। तो आपका हार्डवर्क बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। और वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज स्केल, प्रपोर्शन, साइजिंग। इस पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो आप जब भी डिफाइन करो किसी चीज को, प्रेजेंट करो, बहुत अच्छे से उसके सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के डिफाइन करो। उसकी फोटोग्राफी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट जस्ट टेक द फर्स्ट 2-3 पिक्चर्स, आप इसमें और भी इंप्रूव कर सकते हो। अगर ज्वेलरी बॉक्स है तो बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं बिल्कुल डम प्रूफ चीज बनाना, कि बिल्कुल कॉमन सेंस। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ये ज्वेलरी बॉक्स है तो उसमें ज्वेलरी रखी होनी चाहिए ताकि किसी को डाउट ना रहे, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं ये। और हमेशा ऐसे सोचो कि अगर मैं किसी अननोन इंसान को दिखा रहा हूं तो उसको ये चीज समझने में कितना टाइम लगेगा। विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स? दैट्स ऑल, दैट इज योर गोल्डन स्टैंडर्ड। लाइक 10-15 सेकेंड में वो चीज समझ में आनी चाहिए, ओके दिस इज इट, ठीक है। सो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए होपफुली। अब ये स्लाइड जो है ना इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ये है कॉपी लिंक, एनीवन विद दिस लिंक कैन एक्सेस दिस थिंग। तो मैं इसको कॉपी करके आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप। अब इसमें से जो भी लोग फिग्मा यूज करेंगे वो ये वाली स्लाइड एक्सेस कर सकते, ठीक है। ये बना दिया। तो अब आप लोग इसको एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो, एज अ गाइडेंस यूज कर सकते हो, एंड पुट अप योर वर्क। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इसका एक लोकल कॉपी अपने लैपटॉप पे सेव कर लेना और उसके बाद उसको एडिट करना। ये डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, इसको डुप्लीकेट कर लेना और उसके बाद उस पर काम करना। तो क्या होगा, जो एक्चुअल फाइल होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि किसी का प्रोडक्ट डिजाइन का काम होगा, किसी का फर्नीचर का होगा, किसी का टेक्सटाइल्स का होगा,
किसी का कार डिजाइन का होगा. So don't start working on single file. Duplicate the file and then work on it. Otherwise क्या होगा, because it's a web based tool, आप जो चीज उस पर सेव करोगे कोई और उसको एडिट कर देगा, डिलीट हो जाएगी, एंड देन नेक्स्ट डे यू विल बी लाइक अरे मेरा फाइल कहाँ गया. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग. मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड देन यूज इट. ठीक है. आप डुप्लीकेट करोगे तो फाइल डुप्लीकेटेड लिखा हुआ आ जाएगा. फिर वो जो फाइल डुप्लीकेटेड है उसको ओपन करो या उसको डाउनलोड भी कर सकते हो. फाइल export as PDF and then work on that exported PDF. save as भी कर सकते हो. तो आपने save as कर लिया और उसके बाद उस पर काम किया. ठीक है. या फिर और भी सिंपल काम है, इसको पूरे को एज सच स्लाइड्स को कॉपी करो, Ctrl+C, देन गो टू फाइल, न्यू विंडो, और उस न्यू विंडो में इसको पेस्ट कर देना. सॉरी, हाँ, यहाँ पे फिग्मा में जाना, बैक फाइल्स, देन फाइल्स, और न्यू प्रोजेक्ट में जाओगे ना आप, तो न्यू प्रोजेक्ट जाएगा, ये फाइल्स में जाके न्यू. सो अब मैंने क्या किया, ये एक पूरी न्यू फाइल बना ली, और इस न्यू फाइल में मैंने वो वाले टेम्पलेट्स कॉपी कर लिए. ये हो गया टेम्पलेट्स कॉपी. ठीक है. तो अब ये अनटाइटल्ड फाइल है. देखो ये अनटाइटल्ड फाइल है. ठीक है. अब इस अनटाइटल्ड फाइल को मैं पहले सेव कर लूंगा अपने नाम से, और उसके बाद उस पर काम करूंगा. सेव लोकल कॉपी. ठीक है. तो वो लोकल कॉपी मेरे अपने मशीन पे सेव हो जाएगी. बस इतना करना है. ठीक है. सॉर्टेड. तो आई होप देयर आर नो मोर डाउट्स लेफ्ट. अब इस अनटाइटल्ड को जैसे मैंने सेव कर दिया ईशान, तो ये ईशान के नाम से सेव होगी. अब जब मैं वापस फिग्मा में जाऊंगा, बैक टू फाइल्स, तो मुझे ईशान के नाम से एक अलग फाइल दिखेगी. ठीक है. अब ये वाली फाइल आपकी पर्सनल फाइल है, तो आप जो भी आप एडिटिंग करोगे इस फाइल में करना आपके नाम से. ठीक है. तो किसी और का काम डिस्टर्ब नहीं होगा, और आपका भी कोई फाइल या काम डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा. ठीक है. सॉर्टेड. और अगर फिग्मा यूज नहीं कर पाओ तो पीपीटी भी बहुत बढ़िया है. पीपीटी इज ऑल्सो गुड. पीपीटी में आपको बहुत सारे प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं. बस ये ध्यान रखना कि ये इस टाइप की जम्बल्ड ऐसे मत रखना इमेजेस को. ये जो टेढ़े मेढ़े एजेस निकलते हैं ना, दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग टू लुक एट. हर चीज अलाइनमेंट में बहुत सुंदर दिखती है. बाय डिफॉल्ट इफ थिंग्स आर अलाइंड, इट्स द बेस्ट लेआउटिंग, बेस्ट कंपोजिशन. ये these are like fundamental hygiene level things. Try to keep consistent sizes, consistent layouts, and use very minimalistic style of typography. जैसे ये मैंने सबसे बड़ा टाइटल इसको दे दिया, उसमें एक कलर लिया, सेकंड कलर मैंने अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग, इसका और इसका साइज मैंने सेम रख दिया, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है वो ये डाल दिया. दैट्स इट. तो 3 साइज वेरिएशंस है टाइपोग्राफी में, और 2 कलर वेरिएशंस है. दैट्स ऑल. इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती. बट वी कैन गेट बैक टू दैट वंस योर स्लाइड्स आर रेडी. तो सबसे पहले सारे वर्क को कैटेगराइज करो, स्लाइड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड देन डू ऑल दिस कॉस्मेटिक चेंजेस. दिस आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू वंस योर स्लाइड्स आर रेडी. ठीक है. सो यहां तक अपना काम हो गया है. एंड या जैसे तुम्हारा ये फिग्मा वाला चीज रेडी हो जाए, जस्ट पिंग मी. उसके बाद आपका पोर्टफोलियो वगैरह अपन फाइन ट्यून कर लेंगे. वंस योर पोर्टफोलियो इज फाइन ट्यून, देन आई विल गिव यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और आई विल आस्क यू क्वेश्चंस स्पेसिफिकली फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. उन क्वेश्चंस पे फिर आप और वर्कआउट करना कि
मुझे ये क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है. दैट इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग फॉर ईच वन ऑफ यू स्पेसिफिकली. ठीक है, बट उसके पहले आपका पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए. फाइन. Okay, sir. तो वो चीज अपन वीकडे में कभी भी बैठ के कर लेंगे. एज एंड व्हेन योर पोर्टफोलियोज आर रेडी, just share it with me and then I'll ask you certain questions and we'll prepare for the questions, interview questions. ठीक है, Yes, sir. चलो then Okay, catch you next Sunday. I mean not Sunday but yeah, then we can catch up 1-to-1 anytime. ठीक है, चलो then bye bye. Thank you, sir. Thank Bye, you. sir. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye.